the fact of so far is the how we process the tobacco. So you take the green tobacco leaves from the field, and after the green tobacco leaves are taken from the grain, they are cured. यहां तक हमने सब कुछ जान लिया है. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अब there are lots of different types of tobacco leaves are available in this world. मतलब like depends on the country to country. तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. Then we will move ahead with the main thing, that is the cigar for the day. The first one we've got the Latakia. Then there is something called Perique. It's a very famous tobacco blend which is only available in the Louisiana or New Orleans, USA. And there is something called Burley. These two tobaccos are widely consumed for the purpose of your cigars and all. Okay. Now, when we read about all this thing, we'll encounter with different kind of tobacco like pipe tobacco and all. So we will also able to see that there are lots of tobacco blends. Tobacco blends का मतलब क्या होता है? Like, you know, there is a Perique tobacco and there is a Burley tobacco. Burley tobacco might be sweeter side, or Perique tobacco might be on the harsh side. So what people do, they mix it together so that they get a nice blend. थोड़ा medium blend हो जाता है. कभी कभी tobacco के अंदर we add lots of flavorings. Okay, there is another type which is known as a Virginia tobacco. Virginia, obviously, in United States of America. This is the tobacco which is widely used for the cigarettes. Okay, and also you can see the type of this type of tobacco is also used for the pipes as well. Then we move to the last one, that's known as a Cirolo. Now Cirolo, once again, a type of tobacco which is predominantly used for the cigar purposes. Now Columbus was a person, when he encountered and the first time he reached to Cuba, he encountered with this kind of leaf. इसके अलावा there is something called Cavendish. Okay, there is something called Gutkha. I mean, like, sorry, not Gutkha. There is something called Cavendish. There is something called uh, what is it, Volado, something like that. So all these kind of leaves are there, but these are the main. You can see if you type on the Google the types of tobacco leaves, you will find lots of other I mean, like, lots of different kind of leaves on that. So today we're going to learn about this factor which is known as a cigar. सबसे important चीज है कि what is cigar and how it is manufactured. तो देखो people, I have short this thing. इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको. आपको सीधा ये जो फ्लो चार्ट आपके सामने अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको, you just need to follow this flow chart. इस फ्लो चार्ट को फॉलो कीजिए, rest all will be simple. एकदम सीधा हो जाएगा. सबसे पहले होगा हार्वेस्टिंग, जो हमें सब लोगों को मालूम है कि टोबैको लीव्स जो है वो जब 20 सेंटीमीटर या फिर 8 इंच तक पहुंच जाएगा, देन वी विल हार्वेस्ट दैट. तो हम उसको हार्वेस्ट करके लेके आएंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट क्योरिंग देम. Now, how do we cure this thing? We have learned about this curing process. One is a air curing, one is a fire curing, one is a flue curing, and one is a sun curing. Different tobacco, depending on the harshness, depending on the strength of the tobaccos, everything are cured. So naturally, more fire, more nicotine, more AGE, more sugar, and more dangerous for the health. Less curing, like your flue curing or something, nicotine still be there, more AGE, less AGE, less sugar, it will still cause a cancer, but fire curing वाला जो है वो अगर आप cigarette I mean, like that tobacco, if the people will consume, it will take to catch cancer within 10 years. But if you normally use that fire curing or air curing or flue curing tobacco, if you consume, it will take 30 years to have a cancer or other kind of thing. But if you consume tobacco, lots of carcinogenic problem can happen. This is bound to be. Okay. So the curing notes we have learned. अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक था. अब नया चीज हमें सीखना है. The first one that is coming is a separation of leaf. अच्छा, के look at this anatomy which I've already seen. ये जो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने अभी आ रहा है, that cigar का जब पेड़, when you plow this thing, when you harvest करके आप लेके आते हो, you have got three type of leaves. One is a ligero, one is a seco, and one is a volado. Now
you have to segregate this, that which are the volados, which are the ligeros, which are the segos. उसके हिसाब से आप तीन तीन segment करके उसको रख दो. Once you keep this segment, what will happen that you will start processing, and also इस stage में separation of leaf वाला जो stage है, यहाँ पे also we will do something called separation of leaf for the purpose of making cigarettes, or for the purpose of making chewing tobacco, or for the purpose of making cigar. यहाँ पे सारे separation हो जाता है. Generally, let me tell you something, जिस फार्म में और जिस फैक्ट्री में सिगार मैन्युफैक्चर होता है ना, वहां पे सिगरेट और टोबैको नहीं होता है, बिकॉज cigar is something, it requires lots of labor and as well as lots of investment, which cigarette and chewing tobacco might not need. So naturally, जिस फार्म में सिगरेट बनता है वहां पे च्यूइंग टोबैको या फिर स्नाफ ये सब तो बन जाएगा, बट यू नो सिगार जहां बनता है वहां पे शायद ही ना हो. इसलिए क्यूबा में और हावना में, हॉन्डुरस में, जो हमारी सिगार कैपिटल जहां दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी के सिगार आता है, वहां पे नेचुरली बात है कि सिगरेट वहां से नहीं आएगा. इसलिए द फेमस सिगार ब्रांड विच इज नोन एज पोर्टगस और मकांडू, यहाँ पे you will not find a cigarette of Makandu. Even if it is there, it is not widely consumed like a ITC cigarette or Marlboro cigarette. Okay, because they invest their time only for the cigar. It's something like you can buy a camera of Sony and you can buy a camera of Nikon. You will feel the differences. Because Sony is something that manufacture TV, that manufacture laptop, that manufacture mobile phone, that manufacture और क्या करता है सोनी, क्या करता है ये headphone, everything Sony manufacture, and Sony manufacture cameras also, but Nikon is only manufacture camera. ठीक है, so that's the reason their cameras are the best in the world. Okay, this is the fact. तो यहां से आपका सेपरेशन शुरू हो गया. सेपरेशन के बाद होगा ब्लेंडिंग. नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज. व्हाट इज हैपनिंग, नेचुरली ऑल द लीव्स इन अ फील्ड और इन अ हार्वेस्टिंग फील्ड आर नॉट सेम. सारे लीव सेम नहीं होता है. किसी में शुगर क्वांटिटी कम होता है तो किसी में ज्यादा होगा, किसी में निकोटीन क्वांटिटी ज्यादा होगा, किसी में कम होगा. कभी कभी नेचुरल कैलामिटी के कारण, बारिश कम होने के कारण, पानी का इरिगेशन सिस्टम खराब होने के कारण लीव्स में भी फर्क पड़ता है. इसलिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग टू डू. तो ये कारण क्या होता है कि सिगार्स में शुगर क्वांटिटी, एजी, निकोटीन क्वांटिटी का थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए ब्लेंडिंग किया जाता है. कभी कभी एक फार्म में फायर क्योरिंग एंड ऑल्सो एयर क्योरिंग दोनों एक साथ होता है. उसके बाद दोनों फायर क्योर्ड एंड एयर क्योर्ड लीफ को भी मिक्स कर देता है. इससे क्या होता है, इससे you will get lots of flavor, aromas and taste. ठीक है, so blending is this is the reason blending has been done. Now let's take an example. There is a cigarette, there are lots of cigarette in the market where there is a mint flavor, where there is a chocolate flavor, where there is a flavor of clove. How is it possible? Because when they mix the tobacco, they add clove powder, they add menthol, okay, they add cardamom, all this thing. So these are the reason the blending has been done, and when we do the blending we add all these flavors. ठीक है, and ये वो जगह है, ये वो स्टेज है जहां पे सिगारों को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में बांध दिया जाता है. नो रिमेंबर वन थिंग, हम एक वीडियो देखेंगे थोड़ी देर बाद जहां पे हम देखेंगे कि कैसे सिगार लीव्स को ऐसे रैप किया जा रहा है. Now you can wrap a cigar leaf, but the problem is it will not stay long time. उसको वापस वैसे का वैसा रखने के लिए सिगार को शेपिंग मशीन के अंदर डाला जाता है. इस मशीन को देखने में कुछ ऐसा होता है. लेट्स टेक ए लुक एट दिस. ये जो मशीन आपको आंखों के सामने दिख रहा है, इसके छोटे छोटे होल्स के अंदर we will put the cigar. If you take a look at my notes which I have already sent to you yesterday, over there you will find this picture. Now they will put a pressure from the top, ऊपर से ये pressure डाल दिया है so that the cigar shape remain intact. Okay, so ये pressure डाल के cigar को थोड़ा सा shape दिया जाता है.
इसके बाद टाइटली रैप होगा एंड देन इसके बाद द वुडन स्लॉट से ये निकाला जाएगा एंड फाइनली the rolling will start. Now cigar rolling is a fantastic art. It's a big art. You know, cigarettes and everything are machine rolled, but the cigar is made by hand. Okay, and this remains so tight, just like this. So you can take a look that person how they are rolling the cigar with their hand. So rolling of cigar is done over here. Naturally, once again, cigar के तीन part होता है, filler, wrapper and binder. We'll take a look at this in the later slides. And then you'll be able to understand what is actually happening. After the rolling is completed, what we do, we add some glue डाल के उसको बांध देते हैं so that the stuffing inside should not come out. Okay. अब उसके चारों तरफ एक अच्छा सा रैपर डाल दिया जाता है, जिस रैपर के बहुत सारे नाम होता है, क्लैरो, कोलाडो, all this thing. So that's how the wrapper has been done. Okay. सिल्वर कलर के रैपर जो सिगार को देखने में इतना खूबसूरत क्यों होता है, द रैपर हैज बीन प्लास्टिक का एक रैपर, सिल्क की टाइप का रैपर डाल दिया जाता है, इससे सिगार को दिखने में थोड़ा सा अच्छा होता है. And finally, the packaging is done. Now, cigar boxes are known as a humidors. It's a very important thing. Cigar storage is very essential. If you can buy a cigar and if you keep that cigar without lighting at your home or any other place without proper temperature control, it will going to lose its taste gradually. Or cigar is so dangerous that, you know, if you keep your cigar beside the turmeric powder or whole garam masala, when you smoke the cigar, you will feel that you are getting a smell of your garam masala, cardamom, clove, chili powder, coriander powder, everything. Just like a tea. Just a Darjeeling tea is so delicate product. If you open the tea and you keep it like that, if you don't close the head, what will happen? The smell will revolve around your house and at the same time घर के अंदर जितने सामान है, समझ लो रूम फ्रेशनर हो गया या फिर आपने अभी अपने शरीर के ऊपर एक you put some deo or body spray, that body spray also attract the tea will also attract the smell of the layer shot or maybe Park Avenue or anything else. Okay, so that is the main reason that the cigar should be kept in a well packed area with a nice humidor. जिस boxes को हम कहते हैं humidor, जिस box के अंदर cigar को रखा जाता है. Okay. So this is the whole story about the cigar manufacturing. So harvesting, curing, separation, blending, shaping the cigar by pressure, rolling by hand rolling and packaging. And let me tell you one thing, there are machines are also available in the market which make the cigar. आपको बस filler, wrapper, binder डाल दो, वो bind करके आपको दे देगा. और इसलिए कहा जाता है कि machine rolled cigar की जो price है, those are very cheap, whereas the hand rolled cigar are very expensive. That's why एक क्यूबन सिगार का प्राइस आपको कम से कम समझ लीजिए 450 या 600 प्लस टैक्सेस में मिल जाएगा, whereas a machine rolled cigar it can easily available at 80 rupees or 90 rupees or something. ठीक है. So that's how the cigar manufacturing process. अगर ये ऑफलाइन एग्जाम होता आपके साथ तो शायद दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 10 नंबर में इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आता है, लिखना पड़ता था. मैंने भी लिखा था जब मैं होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट था बैक इन 2009, बट अब तो पता नहीं क्या होने वाला है. तो कपल ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमिडोर्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. Then ये Ligero, Seco and Volado, once again a famous, very interesting MCQ question which you need to keep in mind. Okay, right? तो हमारा cigar yes please. Sir, cigar box को क्या कहते हैं? Please आप repeat कर सकते हैं? Yes, it's called. You can take a look at the screen. यहाँ पे एक black color का आपको highlighted version दिख रहा होगा. It's known as a humidors. ठीक है? आप लोगों क्या ये स्लाइड्स नहीं दिख रहा है क्या? सर विजिबल है. विजिबल है पक्का? यस सर. सर सिगार मैन्युफैक्चरिंग वाला स्लाइड विजिबल है. हाँ ठीक है. ओके चलो. तो ये जो ह्यूमिडोर्स आपको सामने दिख रहा है, ये देखो ब्लैक कलर में. काम करता हूँ मैं एक चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ, रुको. सो सिगार बॉक्सेस इज एक्चुअली लुक लाइक, मैं भी लिखता हूँ यहाँ पे,
take a look at the chat box. Yeah, it's known as a humidors. So I have just posted over there. It's known as a humidors. Humidors is a place where the cigar boxes में अंदर इस box के अंदर इसके अंदर basically क्या होता है, boxes are made, हम इसके बारे में जानेंगे थोड़ी देर बाद. These boxes are actually made out of your you know क्या बोलते हैं, सीडार बोल के एक वुड होता है, उस वुड से बनता है. Naturally that's the main reason this has a very nice temperature control. Okay. तो सिगार तो हमारा अभी बन गया, हमारे हाथ में सिगार आ चुका है. अब हम आगे जाएंगे. बनने से सब कुछ नहीं होता है, उसके बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी है. आगे बढ़ते हैं. ओके, एक ट्रिविया है, मैंने इसके बारे में पहले भी कहा था, थोड़ा सा और जान लेते क्योंकि सब लोग रिवीजन क्लास में उस दिन नहीं थे. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिगरेट छूटती क्यों नहीं है और क्यों हमें एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाना पड़ता है. बट टेल यू वंस अगेन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दिस निकोटीन. What this nicotine does, it goes inside your bloodstream. Heart तो खराब करता ही है, and then it goes inside your bloodstream, और bloodstream के माध्यम से it will reach your brain. अब brain में जैसे ही जाएगा, it will release a chemical which is known as the globulin. Now globulin is a type of chemical जो आपको हमेशा ऐसा कहेगा, अरे चल थोड़ा सिगरेट पीते, अरे चल थोड़ा सिगरेट पीते, अरे चल थोड़ा सिगरेट पीते. Even if you are dying, even if you are dying on your bed and taking the last breath of your life, still it will going to poke you. So there is an interesting survey which was said that if you drink 1 bottle of whiskey in a day, you will feel exhausted for the entire day. But even if you drink or even if you smoke 1000 cigarette in a day with a half an hour of gap, you will never feel any exhaustion. और इंटरेस्टिंग कहानी ये है, पीपल प्लीज म्यूट योरसेल्फ. और इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि आज इफ यू स्मोक 1000 सिगरेट इन अ डे, tomorrow you will feel like I will smoke 2000 more cigarette. This is the problem. The reason behind this is globulin. So the globulin is something is always tell your mind, चलो सिगरेट पीते, चलो सिगरेट पीते, चलो सिगरेट पीते, even if you are dying at the bed. तो सब लोगों ने क्या सोचा, चलो लेट्स इन्वेंट समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट. तो भगवान के दया से हम लोगों ने इन्वेंट किया. देयर इज समथिंग कॉल्ड, ओके जस्ट अ मोमेंट, आई हैव टू टेक दिस. ऑलराइट, सॉरी. तो चलो लेट्स गो फॉर अ ई सिगरेट. पूरे दुनिया ने सोचा कि चलो लेट्स गो फॉर ई सिगरेट. तो व्हेन द पीपल गॉन फॉर ई सिगरेट, दे फाउंड आउट, oh my god, it's so dangerous again. The chemical which is used in the e-cigarettes are carcinogenic like formaldehyde, benzene. These are the factor. जैसे समझ लो ये जो बेंजीन है ये पेट्रोल में मिलता है. Propylene glycol, lead and cadmium. It is not only dangerous for your heart, but it is dangerous for your nerves. It is dangerous for your muscles and everything. Because the problem is, this is how the e-cigarette look like, and here you got a liquid. This is known as an e-liquid, and it has been charged in a battery. So ये आपका USB port है, इसको आप कोई लैपटॉप या मोबाइल फोन में ऐसे लगा दो तो it will get charged. And the moment you blow air or you start smoking from here, what will happen? You actually inhaling this liquid with the heat of a charging power. And when this power enter inside your heart, it will not only damage, it will not going to damage your heart, that is for sure, because it has no nicotine, no problem. But yes, it will kill your brain, and there's a lots of chance of brain stroke and all everything, fully paralyzed and everything, because this acetaldehyde and formaldehyde, these are very very dangerous. Okay, so that's why people then say, oh my god, ये तो और बड़ा भयंकर सीन हो गया. If you smoke e-cigarette, you will die in 1 month. At least चलो cigarette smoke करने से will die in 10 years. That is the reason the entire concept is dangerous. चाहे वो cigarette हो या फिर e-cigarettes हो. That's how your liquids look like. Take a look at this. Highly manufactured in the America. के क्योंकि e-cigarette actually US का एक concept था.
तो इंडिया में तो ई सिगरेट मैक्सिमम बैन हो चुका है, एंड दिस इज द लिक्विड इज एक्चुअली लुक लाइक इट्स हाईली डेंजरस, मतलब लाइक इट इज जस्ट लाइक इफ इट इज आल्सो सेड कि वो अगर इस कोई अगर somebody will drink it just like this liquid in a one shot, he will going to paralyze for at least 24 hours or something like that. Okay, so this is the main reason everybody should avoid tobacco and also e-cigarette. चलो ठीक है, ये तो ट्रिविया था, ये बस जानने के लिए था। आगे बढ़ते हैं फिर से। सिगार के 3 पार्ट होता है, फिलर, बाइंडर एंड रैपर। अब ये 3 बाइंडर क्या है और उसके रेशियोज क्या होता है। वी गॉट अ क्विज पीपल, वी गॉट अ क्विज। जो सो गए थे जाग जाइए। देखते हैं आज क्विज में हमारा क्या क्वेश्चन है। क्विज का क्वेश्चन है, which of the plays of Shakespeare is named after a cigar brand? शेक्सपियर का कौन सा नाटक के नाम पे रोमियो एंड जूलियट। ओके, Romeo and Juliet. Romeo and Juliet, right. So 1560, Rahul Sikh has also commented. ठीक है, right, okay, fantastic. So Romeo and Juliet is a famous play which was named after Shakespeare. I mean, like named after a cigar brand which come from Cuba. Okay, and Romeo Juliet is a kind of a cigar. I mean, like this is a famous play which was first came on the stage of England in 1565, in the year of 1565. ठीक है, right? चलो आगे बढ़ते हैं फिर से। तो ये हमारा फिलर हो गया। फिलर मतलब ये जो अंदर का पोर्शन है, आप देख सकते हो कितने स्मूथ तरीके से इसको रैप किया गया है। लुक एट दिस वन। सो बेसिकली दीज आर ऑल ड्राई क्योर्ड टोबैकोस। जो टोबैको हम क्योर करने के बाद जो सूख के एकदम ड्राई हो जाएगा, उससे हम ये फिलर बनाते हैं। ओके, so it is come, and also sometime it is we add some moisture in that so that it's the binding में उसका अच्छा हो। Okay, so 85% of your cigar is comprises of your filler only, ठीक है। And let me tell you one thing, this is cigar manufacturing or cigar rolling and making, it's a really talented hand of work, and it is said, जैसे कि समझ लीजिए जिस फैमिली में एक फैमिली परंपरा है, क्यूबा में ये एक फैमिली परंपरा है कि अगर किसी के दादाजी सिगर रोलर था तो उसके पापा भी सिगर रोलर होगा और उसके बेटा भी सिगर रोलर होगा। ये एक फैमिली टैलेंट है जो उनके हेरिडिटी के साथ साथ डेवलप होता जाता है। जैसे कि हमारे देश में कहावत है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बन सकता है, इंजीनियर का कोई भी डॉटर जो है वो इंजीनियर ही बनेगा। ओके, सेम थिंग लाइक दैट। सो वहां पे ये इतना बड़ा ट्रेडिशन है एक, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका बाइंडर। बाइंडर इज बेसिकली दिस वन, जो ये वाला जो पोर्शन अभी आपने देखा था, ये जो आउटसाइड दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड बाइंडर। नाउ दिस बाइंडर इज वन सेकंड, नाउ द फिलर व्हिच इज गोज इनसाइड, इट इज मेड फ्रॉम योर लिहेरो, सेको एंड वोलाडो। वोलाडो से ये बनता है। उसके बाद ये आउटसाइड वाला जो बाइंडर है दैट इज एक्चुअली मेड फ्रॉम योर सेको, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है दैट इज मेड फ्रॉम लिहेरो और लिगेरो, जो भी है। सो दिस आर द मेन फैक्टर्स। आई मीन लाइक ये सारे वो बाइंडर्स है, ये ओनली 10% ऑफ सिगार होता है। एंड फाइनली आता है आपका रैपर। रैपर इज ओनली 5%, दैट इज ट्रू, लेकिन रैपर के ऊपर एक सिगार की स्टैंडर्ड, क्वालिटी, प्राइस, प्रेजेंटेशन सब कुछ होता है। रैपर ओनली 5% होता है, ये बात तो सही है, लेकिन इट हैज लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि आपको एक वो फेमस कहावत तो याद ही होगा कि जो दिखता है वो बिकता है। तो आपका जो आउटसाइड जो कोटिंग है, कवरिंग है, वो जितना खूबसूरत होगा उसके ऊपर आपकी सिगार डिपेंड करता है। इसलिए रैपर के ऊपर क्या किया जाता है, बहुत सारे कलर्ड सिल्की प्लास्टिक क्लोथ्स रैप किया जाता है सो दैट इट लुक्स वेरी फैंटास्टिक। ओके, इसको हम कहते हैं सिगार रैपर, जैसे कार्लो, कोलोराडो, उसके बारे में हम आगे जानेंगे थोड़ा सा, ठीक है। एंड फिलर एंड बाइंडर टुगेदर इट्स कॉल्ड एज अ बंच, ठीक है। सो फिलर, रैपर एंड बाइंडर। सो ये रैपर है, ये अब अगर वो सिगार की जो एनाटॉमी का जो फिगर था जो मैंने आपको दिखाया था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो टॉप वाला जो पोर्शन है व्हिच वाज नोन एज अ लिहेरो और लिगेरो, दैट इज मेड फ्रॉम दिस वन।
ठीक है, ये हो गया आपका सिगार के कॉम्पोजिशंस। अब हम आगे और जाएंगे तो हम देखेंगे क्या, सिगार कटर्स। सिगार कटर्स अनदर वेरी एक्सपेंसिव एंड आल्सो वेरी ट्रेडिशनल इक्विपमेंट। तो सिगार कटर तीन टाइप होता है। वन इज योर स्ट्रेट कट, यू कैन टेक अ लुक, दैट्स हाउ इट्स वेरी वेरी वाइडली एंड कॉमनली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड पंच कट। पंच कट में क्या होता है, ये जो सिगार आपको दिख रहा है यहाँ पे, छोटा सा यहाँ पे एक पंच हो जाएगा, छोटा सा होल, जस्ट लाइक अ पंचर, जैसे पेपर हम पंचिंग करते हैं उस टाइप का यहाँ पे केस होगा। फाइनली देयर इज समथिंग कॉल्ड वी कट। वी कट को देखिए, ये शेप कुछ और होता है एक तरह से, ये कट करने के बाद एक वी टाइप का शेप आएगा। रीजन बिहाइंड दिस व्हाई देयर आर डिफरेंट कट्स, इसका कारण ये कि टू गेट द आई मीन लाइक स्मोकी फ्लेवर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू कट इट लाइक दिस, इसमें क्या होगा, एक बहुत बड़ा कट आएगा, द स्मोक द यू विल गेट द मोस्ट ऑफ द फ्लेवर। नाउ पंच कट में यहाँ पे जब फायर लगाओगे आप, व्हेन यू ऐड सम मैचस्टिक से आप आग लगाओगे यहाँ पे, व्हाट विल हैपन दैट यू विल नॉट गेट दैट harshness of the tobacco like the way you get. You can take a look at the next picture. Next slide में आप देखोगे। ओके चलो फिर से एक क्विज आ गया है, देखते हैं ये क्विज क्या है एक बार। तो पीपल फिर से जाग जाइए। क्विज है, हु इज द चेयरमैन ऑफ इंडियन टोबैको कंपनी? संजीव पुरी। संजीव पुरी। संजीव पुरी। क्या बात है, बहुत संजीव। राइट, संजीव पुरी। अच्छा, आईटीसी का फुल फॉर्म क्या है, कौन बोल सकता है? इंडियन टबैको लिमिटेड। इंडियन टबैको कंपनी। मतलब सबसे पहले इसका क्या नाम था इंडिपेंडेंस से पहले, 1947 से पहले? सब लोग क्या गूगल चेक करने लग गए? इंडियन टोबैको कंपनी। It was known as Imperial Tobacco Company. Independence से पहले it was known as an Imperial Tobacco Company because that time ITC was run by the East India Company के जो लोग थे, उन्होंने Imperial नाम से इसको जाना था। सबसे पहले ITC का नाम था Imperial Tobacco Company। उसके बाद today we know it as a ITC, that is India Tobacco Company। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे, ये देखिए, अगर आप स्ट्रेट कट से ऐसे ही इसको कट कर दोगे तो you'll get a big edge, बहुत बड़ा एज आपको यहां पे दिखेगा। इसमें क्या होता है, when you add a fire in this you will get a nice flame, whereas if you add a fire here you won't get that much of flame. If you add a here you get a slightly medium. So why it has been done? देखिए, for the first timer, suppose like a guest or somebody wants to smoke cigar for the first time, उनके लिए तो पंच कट बिल्कुल सही है, बिकॉज पंच कट में क्या होता है, धीरे धीरे धीरे, देखिए सिंपल थिंग है, जितना टोबैको का जो फिलर है, सिगर का जो फिलर है, वो जितना जलेगा उतना आपको हार्श लगेगा गले में और हार्ट में। दैट इज द रीजन इट इज सेड कि द मोर कट इज स्मॉल, जितना कट का साइज जितना स्मॉल होगा उतना हार्शनेस कम लगेगा। बाद में वो बढ़ जाएगा, वो बात तो सही है, लेकिन शुरू में जो पहला जो शॉट when somebody smokes, it will going to punch his heart अगर वो straight cut हुआ तो। straight cut में the cigar will get a round, बहुत बड़ा एरिया होता है उसमें, and there if you light a tobacco, वहां से अगर आप tobacco के फिलर को लाइट करते हो, you will get a massive harshness from there and that will create a problem and sometimes people get senseless। मैंने एक बार देखा था होटल में, एक तो somebody smoked the cigar first timer and he just senseless and fell on the ground। पानी डाल के उसको फिर the guest was stabilized, okay, because we Indian don't have a tendency to smoke you know like pure tobaccos, because cigarettes is not a direct tobacco। cigarettes come from, सिगरेट का जो निकोटीन होता है वो बहुत सारे फिल्टर्स के बाद पास आउट होके हमारे शरीर के अंदर आता है, whereas in case of cigar it is direct tobacco that you are consuming, so it will create a problem for Indians। So it is a big problem to smoke a cigar unless if you are well, I mean like if a guest is not practiced well, if you try to smoke, हाँ चलो cigar पी के देखते हैं, it will create a big problem। Okay, so that is the main reason। So just for the smell and the harshness, level of harshness, these three cuts are invented naturally। three different types of machines also invented। ठीक है, तो type of cigar cuts
very important for MCQ question. Punch cut, V cut and straight cut. Please remember, straiट कट का एक और नाम है गुलेटिन और गैलोटिन. गैलोटिन क्या होता है? पहले के जमाने में आप लोग वो देखते होंगे. अरे गैलोटिन का एग्जांपल मैं कैसे दूं आपको? वो जैसे कि समझ लो वो पहले नर बलि जो किया जाता था ना, कि आदमी का सर यहाँ पे रख दिया गया, somebody will come and cut from the back, that is known as a guillotine. वो जो जिसके अंदर वो ऐसे अपना गर्दन रखता है उसको हम कहते हैं गैलोटिन, and then it is cut from the back. ठीक है, तो स्ट्रेट कट का दूसरा नाम है गैलोटिन कट. ऐसे करके कट कर देता है. सो यू पुट योर हेड हियर एंड somebody will cut from the back. तो वहां से गैलोटिन शब्द का इन्वेंशन हुआ था, एंड दैट इज आल्सो नोन एज अ स्ट्रेट कट. ओके, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ सिगार cutter and also their cuts. Okay, we'll take a look at how to like how a cigar has been served. Very traditional. Matlab like I also don't know properly that how to because in my life I never got a chance to serve a cigar to somebody. तो मुझे भी सही से नहीं आता है कैसे सिगार को कट किया जाता है and कैसे it has been served to a guest. Okay, because in Oberoi Uday Vilas, we used to have a cigar, but I haven't seen क्योंकि वो इतना expensive था. Nobody used to buy that thing. Okay, चलो. Yeah, this is what I am talking about. सिगार के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, which is known as a wrapper, इसके बहुत सारे कलर्स आता है. इस कलर को मैंने फिर से कहा था कि रैपर का जो कलर होगा उसके हिसाब से आपका सिगार का मार्केट में प्राइस दर्ज होगा. There is something called Carlo, that's light golden brown. Colorado Tawny color, then Colorado Carlo, Colorado Maduro. ये सब नाम जो है ये आपको याद रखना होगा. And let me tell you once again, this is highly important for your MCQ question. कोई भी यहाँ से एक नाम उठा के आ जाएगा और कह देगा कि मडूरो का कलर क्या होता है, ऑप्शन A B C D. तो प्लीज इस यहाँ पे वो ई सिगरेट के बारे में आप जानो या ना जानो वो बात की बात है, लेकिन ये इसके बारे में तो प्लीज पीपल, इट इज देयर इन द सिलेबस, सो देयर इज अ 99% चांस दिस क्वेश्चन कैन कम इन माय व्हेन आई यूज्ड टू गिव एफएमबी एग्जाम. मेरे टाइम पे भी ये एग्जाम ये क्वेश्चंस आता था. सो प्लीज पीपल जस्ट बी केयरफुल. आई हैव सेंड यू द नोट्स, प्लीज रीड फ्रॉम देयर. तो बेसिकली ये जो कलर्स है ये सिल्की पेपर्स इसके ऊपर डाल दिया जाता है सो दैट the wrapper gets a fan. इसका मतलब ये नहीं है कि रैपर भी एक टोबैको लीव्स है. सो लिगेरो से टोबैको लीव्स से उसको रैप किया जाता है, दैट इज फाइन. लेकिन उसके ऊपर मैं थोड़ा सा रैपर कर दूं, दिखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है. समझ लो, आप समझ लो, लेट्स टेक एन एग्जांपल. अपना काव्या ने सोचा कि अंकिता के बर्थडे में अंकिता को एक घड़ी गिफ्ट करना है, तो काव्या के ऐसे घड़ी लाके दे देगा? नहीं देगा. काव्या क्या करेगा, एक मार्केट पे जाएगा, एक अच्छा सा गिफ्ट रैप लेके आएगा, उसको रैप करके प्रेजेंट करके देगा, अंकिता हैप्पी बर्थडे. So this is the main reason the wrapping has been done. Okay. Next we go to the cigar shapes. अच्छा people, यहाँ पे एक छोटा सा मैथमेटिक्स है. अब मैं फिर से बोल देता हूँ, मेरा मैथमेटिक्स बहुत खराब है. मेरा मैथमेटिक्स खराब है इसलिए मैंने होटल मैनेजमेंट किया है और कोई रीजन नहीं है. ठीक है, कोई अगर पूछेगा कि सर आपने होटल मैनेजमेंट क्यों किया, मैं आज ही बोलता हूँ मैं मैथमेटिक्स नहीं आता इसलिए मैं साइंस नहीं किया. यहाँ पे एक मैथमेटिक्स है, मेरे को हेल्प चाहिए. मैंने तो सीधा बुक से लिख दिया है, लेकिन आप मुझे समझाओगे इसके बारे में. तो पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि सिगार का जो शेप है वो कैसे हम पढ़ते हैं. सिगार के दो टाइप ऑफ शेप होता है. एक होता है पेजेरो, एक होता है फिगुराडो. ना पेजेरो के ये क्लासिफिकेशंस होता है. जैसे कि समझ लो ये दिख रहा है आपको, पेजेरो ऐसा शेप होता है, बॉक्स प्रेस, कुबेरो. उसके बाद टॉर्पेडो, जैसे कि समझ लो आपने द गाजी अटैक जो मूवी आया था वो आपने देखा होगा, उसमें यू हैव सीन दैट व्हेन दैट गाजी सबमरीन इज लॉन्चिंग दैट थिंग योर टॉर्पेडो बॉम्ब्स, वो कैसा होता है, वो दिखने में ऐसा होता है. यस थैंक यू. तो वैसे सेम वे देयर इज अ बेलिकोसो, परफेक्टो, चीजेल, ऐसे सारे नाम होते हैं. ऐसे बहुत सारे शेप्स है, और उसके नाम है, और हर शेप के एक साइज होता है. अब सिगार की साइज हम कैसे पढ़ सकते हैं? अब लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक सिगार का साइज है, उसके पैकिंग बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है 6x50. इसका मतलब ये है 6 इंच तो उसका लेंथ है. अब मुझे आपकी हेल्प यहाँ पे चाहिए.
उसका जो ग्रिथ होगा, डायमीटर होगा, वो कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं? कैलकुलेट बाय द मल्टीपल्स ऑफ एन इंच। मल्टीपल्स ऑफ एन इंच मतलब वो यहाँ पे क्या कर रहा है, 50 डिवाइडेड बाय 64 into 1, that is 0.78, and then if we convert it into millimeter, so it will be like 78 multiplied by 24 into 5 mm. 24 into mm मतलब होता है क्या, 1 इंच का, शायद 1 इंच, 1 इंच इक्वल्स टू 24.4 mm, राइट? ऐसा कुछ है क्या? तो 6 इंच हो गया उसका लेंथ, और उसका डायमीटर कितना होगा, 19.84। अब बताओ ये मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है? मुझे ना ये चीज समझ में नहीं आया सही से, ये जो अपना क्या नाम है, क्या है मल्टीपल्स ऑफ एन इंच, ये बात किसी को समझ में आया? मल्टीपल्स आई थिंक 0.78 जिसका ठीक है, उसका साइज होगा उसके मल्टीपल्स होंगे ऐसे। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि राहुल इसको मतलब लाइक ये 78 का मल्टीपल, ये बोल रहे हो आप? यस सर। ठीक है, ऑल राइट, समथिंग लाइक दिस। ओके, और कुछ ऐड करना है किसी को? Why here it is 64? Why 64 is here? Okay. 64 is here. The reason behind this, see, इसे हम कहते हैं रिंग गेज। ये जो सिगार का जो ये राउंड शेप्स होता है ना, इसको हम कहते हैं रिंग गेज। तो एक रिंग गेज का मतलब होता है 64 mm कहा जाता है, उसके हिसाब से 6 इंच इज अ लेंथ एंड 50 इज अ, आई मीन लाइक इज अ डायमीटर। अब ये क्या डायमीटर है, 50 मिलीमीटर डायमीटर तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब वो इतना लार्ज हो जाएगा। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला इज बेसिकली लाइक दिस, दैट 50 by 64 multiplied by 1, that is 0.78। अब इस 78 जो है इसको हम करेंगे मल्टीपल्स ऑफ इंच, जो मुझे लगा ये, एंड दैट इज 1 इंच इज इक्वल्स टू 25.4 mm मिलीमीटर, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आ गया। तो 19.84 मिलीमीटर इज द डायमीटर। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मेरे पास ये, एक बार रुक जाइए, जस्ट अ मोमेंट। अगर ये एक सिगार है तो इसका जो लेंथ है, दिस लेंथ इज 6 इंचेस, एंड ये जो डायमीटर है, ये जो गोल डायमीटर है, ये इसको ऐसा आपको 50 के नाम से आएगा, या तो फिर कभी 48 के नाम से आएगा। इसको हम कहते हैं रिंग गेज। ये जो ये दिख रहा है आपको, इट्स लाइक अ रिंग, इट इज नोन एज ए रिंग गेज। तो 1 रिंग गेज इक्वल टू 64 mm, तो 50 by 64, दिस इज द फॉर्मूला एक्चुअली। ठीक है, 60 में था, दिस अंडरस्टूड। इस फॉर्मूला को Yes, आपको sir. यूज करना, तो इस फॉर्मूला को आपको यूज करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना ये कैलकुलेशन सही से समझ में नहीं आया, मैंने एक बुक में देखा और उसको यहाँ पे लिख दिया, सीधी बात है। तो पीपल जस्ट एक्सप्लोर दिस फॉर्मूला इंटरनेट में, गूगल में। Sir, यस प्लीज sir, बोलिए। I think one inch equal to 25.4 mm है, तो मल्टीपल ऑफ इंच इट मींस कि 2 से अगर इनटू करेंगे तो अराउंड 50 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ, तो 50 पॉइंट इसीलिए समथिंग आएगा। तो इसलिए इसका मल्टीपल ऑफ इंच आई थिंक किया है। अच्छा, हाँ, राइट, अभी ये पॉइंट सही है पल्लवी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, अगर हम इसका डबल कर देंगे तो 50.8 समथिंग आएगा, इसलिए इसको मल्टीपल्स ऑफ इंच कहा जा रहा है। ठीक है, ये बात भी सही है। ठीक है, पीपल एक्सप्लोर ऑन दिस, मोर ऑन दिस। मैं फिर से बोल रहा, मेरा मैथमेटिक्स बहुत खराब है, इंटरनेट में थोड़ा सा देखो सर अच्छी तरह। पल्लवी का पॉइंट समझ नहीं आया मुझे। पल्लवी ये बोलना चाह रहा है। अच्छा पल्लवी मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ बोलिए जैसे आराम 1 से। इंच इक्वल टू सर ने बताया 25.4 mm, तो अगर हाँ, हम उस 25.4 mm को 2 से इंटू कर देंगे, मल्टीपल इट मींस कि 2 से इंटू करेंगे तो वो 50 अराउंड 50 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 8 आएगा। वही मल्टीपल ऑफ इंच आई थिंक होगा, उसका हाँ, मतलब वही है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि 50 डिवाइडेड बाई 64, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1 रिंग गेज इक्वल्स टू 64, ये तो है ही। अब ये हाँ 60, बोलिए। सर नाउ क्लियर। नाउ
क्लियर है? मेरे को Yes. पता नहीं, हाँ मेरे को अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। मैं ना क्या करता था बचपन में मैथमेटिक्स, अच्छा मैं ना मैथमेटिक्स को बचपन में रट्टा मार के जाता था एग्जाम में, तो वो उल्टा आ जाता था। मतलब समझ लो कि एक एरिथमेटिक है, बुक में प्रैक्टिस कर गया, मैं प्रैक्टिस नहीं करता था, मैं रट्टा मार के जाता था। अगर वो नंबर चेंज हो गया एग्जाम के पेपर में तो मतलब मेरा गया, मैं समझता नहीं था कभी। तो ये भी मैंने रट्टा मार के ही सीखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरा ज्ञान बहुत कम है इसके बारे में। तो जो मुझे पल्लवी मैडम के एक्सप्लेनेशन से समझ में आया वो ये है कि 1 रिंग गेज इक्वल टू 64, ये तो फिक्स है, और 6 इंच ये लेंथ हो गया, ये तो कब, इसका मतलब है इस सिगार का, ये जो सिगार मेरे हाथ पे है इसका लेंथ है 6 इंच। अभी जो 50 है ये रिंग गेज कहा जाता है। 1 रिंग गेज इक्वल्स टू 64 mm, तो 50 बाई 64 करने से आपका एक्चुअल mm आ गया विच इज 0.78। ठीक है, अब जैसे ये आ गया, फिर से मैंने क्या कहा, मल्टीपल्स ऑफ एन इंच। तो पल्लवी कुमारी का अगर आप एग्जाम्पल लेते तो जैसे वो ये बोल रहा है कि 25.4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इट विल कम अराउंड लाइक 50.8 समथिंग, कुछ ऐसा आएगा। तो उसके हिसाब से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, देन वी गेट अ 19.84, दैट इज द डायमीटर। ये जो सिगार दिख रहा है इसका जो डायमीटर है, दिस डायमीटर इज 19.84। पीपल मे बी दिस क्वेश्चन विल, doubt. हाँ हाँ सर बट यहाँ पे जैसे ये लिखा है सो 50 by 64 into 1, so why here 50 is written then? ये समझ नहीं आ रहा है अब। क्या है क्या है वाई 50 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? 50 तो यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे देखो 6 इंच तो इतना है। आप किसी ने आपको बोल दिया कि सिगार का लेंथ चलो ठीक है 6 इंच है, तो मैंने जैसे सिगार के बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि इस बॉक्स के अंदर जितने सारे सिगार है उसका साइज क्या है 6 इंटू 50। ठीक है, तो Yes. 6 ओके 6 इज बाय डिफॉल्ट 6 इंच इज अ लेंथ, ये लेंथ हो गया। अब सवाल ये कि ये ब्रेथ कितना है। अब ब्रेथ अब लाइक ये डायमीटर कितना है, सिगार के ये डायमीटर को सिगार की भाषा में, कैलकुलेशन की भाषा में कहा जाता है रिंग गेज। इतना समझ लो, 1 रिंग गेज इक्वल्स टू 64 mm। अब इसलिए उसको 50 के साथ उसको डिवाइड किया गया होगा। अच्छा, कोई मैथमेटिशियन अगर पल्लवी मैडम इसको और एक्सप्लेन करना चाहे अच्छी तरह से कि क्यों इसको डिवाइड ये कर दिया गया है। सृष्टि मेहता का भी हालत मेरे जैसा ही है लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, वी आर ऑन द सेम फील्ड। ठीक है, तो पल्लवी जी अगर आप और एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये क्यों डिवाइड हुआ, ये कोई मैथमेटिशियन नहीं है अच्छा यहाँ पे कुछ और बढ़िया सा? अरे यार सबका हालत मेरे जैसा ही है क्या? चलो ठीक है, हाँ राहुल प्लीज। सर मैथ्स इतना ही अच्छा होता तो पूसा में होता है। नहीं नहीं, मैथ इतना अच्छा होता तो आज आप पूसा में नहीं होते, लेकिन किसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में होते। आई थिंक शिवम वर्मा इज ऑल्सो राइट, Sir, रेडियस के लिए। हाँ बोलिए बोलिए। रेडियस और डायमीटर जब निकालते हैं ना तो 64 से वो करते हैं, डिवाइड करते हैं, हाँ आई थिंक वही। अच्छा मतलब ओके ओके, एक डायमीटर, हाँ जी हाँ जी, अच्छा ठीक है, सुनो सुनो एक काम करते हैं, ये तो जस्ट मैंने आपके नॉलेजेस के लिए इतना आपको मैंने इतना एक्सप्लेन किया है, आप थोड़ा सा इसको देखो। हम प्रैक्टिकल क्लास है हमारे पास पूरा 2 घंटा है, कल इसके बारे में और हम सर करके आएंगे। कल इसके बारे में थोड़ा सा मैं वो करूंगी। हाँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, आइए आप। हाँ आई थिंक शिवम वर्मा ये भी पॉइंट हो सकता है जो चैट बॉक्स में लिखा है आपने कि 2 डायमीटर, तो उससे 64 शायद आ रहा होगा। ठीक है, हाँ तो पल्लवी कुमारी प्लीज आप थोड़ा मैथमेटिक्स के बुक्स को देखिए और आइए, हमें कल आप पल्लवी मैडम से हम क्लास लेंगे, ठीक है, रिगार्डिंग दिस। ओके चलो कोई बात नहीं, दैट्स ओके, बट इट्स अ वेरी फैंटास्टिक नॉलेज। हाँ प्लीज वो बोलिए कौन है। सर मुझे ऐसा लगा कि जो 50 दिया है वो जो आपने बोला रिंग गेज का साइज है, तो वो जो सिगार का रिंग है वो मतलब सर्कल में होता है, उसको हम मैथ्स में बोले तो सर्कमफेरेंस बोलते हैं उसको। तो हमें उससे डायमीटर निकालना है और सिगार का फॉर्मूला होता है कि रिंग गेज साइज अपॉन 64 into 1। तो यहाँ 50 दिया है, इससे हमारा ये डायमीटर आया 0.78।
ओके अब ओके हमें इसे mm में कन्वर्ट करना है, तो आपने बताया आपने 1 इंच इज इक्वल्स टू 25.4 mm होता है। mm होता है, हाँ। तो हमें 0.78 को कन्वर्ट करना है mm में, तो हम उसको 25.4 से इंटू करेंगे तो आंसर mm में आ जाएगा, जो उसका डायमीटर होगा। आई तो थिंक बेस ऐसा। या ये थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात लग रहा है, सही है ये। ऑल्सो फौजिया मोहम्मद, दिस इज ऑल्सो द फैक्ट कि ये जो आपने कहा ना डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर निकालने के लिए हमने इसको 64 में किया है, ठीक है। आई थिंक राहुल सिक का ऑल्सो से थम्स अप, तो दैट इसका मतलब सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। सर और 50 किसी का साइज। हाँ जी हाँ जी, सर इज इक्वल टू 2 पाई आर। क्या 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 2 पाई आर सर कुछ 50 50 क्या? तो सर जो 50 है ना वो रिंगेज का साइज है आई थिंक। हाँ रिंगेज का 50 साइज है। मैंने तो देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था मेरे वो टाइम तो पे, मैंने तो सर वो तो पैकेट पर लिखा हुआ है ना, जैसे 6 into 50, तो हम उसको मानकर चल रहे हैं। बस 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 पैकेट पे। हाँ प्लीज बोलिए। लिखा है सर 6 जो हो गया वो लेंथ सर हो जो गया, और रिंग 50 जो वो रिंगेज। अच्छा ठीक है, एक बार सूरज कुमार पांडे प्लीज कैरी ऑन। 6 तो लेंथ है, वो तो कंफर्म है, हाँ चलो आगे। 50 जो है वो सर रिंगेज है आई थिंक। रिंगेज है, हाँ 50 इज रिंगेज। लेकिन देखो हमेशा याद रखो सिगार के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ आता है कि ऑल द सिगार हेयर 5 मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ द सिगार इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 40, ये भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल इंच उसका 6 इंच लेंथ। या सर जो आप बता रहे हैं वो 64 ऑफ इंचेस, सर वो एक रेगुलर सिगार का होता है, बट सर जो पैक के ऊपर लिखा होता है 6 into 50 6 into 40, तो सर 6 इंचेस जो सिगार का साइज होता है उसमें 50 होता है सर, वो उसका डायमीटर होता है। राइट अब राइट सर एक रेगुलर सिगार का सर, जैसे हम लोगों ने कोई भी जैसे सर आपने परेजो बताया है, तो जैसे मैंने वो सिगार उठा लिया, तो सर मुझे सर उसका डायमीटर निकालना है, तो उसके पैक के ऊपर लिखा है 6 into 50, दैट मीन्स 6 is लेंथ एंड 50 इज द डायमीटर। तो सर उसका मैं सर एक्चुअल साइज निकालने के लिए, तो सर उसका एक फॉर्मूला बताया हुआ है कि सर जो रिंगेज का सर साइज होता है एक प्रॉपर 64 इंचेस होता है, तो सर उसका फॉर्मूला होता है सर 50/64 into 1 सर हो जाता है सर उसका mm। सर जब उसको mm में कन्वर्ट करेंगे ना सर 25.4 इंटू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सर उसका एक्चुअल जो लेंथ होता है सर वो निकल आता है, जैसे कि इसमें निकल के आया था 19.84 से निकल के आया है। राइट राइट, ये है रियल डायमीटर उस सिगार का, रियल डायमीटर। राइट राइट, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। सर सो एक चीज और इंक्लूड करूंगी सर, हाँ, वो जो 64th आप बोल रहे थे, वो जो सिगार का 64th इंच है, वो 64th इंच को डिवाइड किया गया है, 50 उसका डायमीटर है और 64th उस सिगार का इंच है, ओके, इसलिए वो 64th लिया है। अच्छा 64th इंच ऑफ अ सिगार, ठीक है, डायमीटर। ओके ओके, ये भी है, ये भी पॉइंट है। देन सर, हाँ अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हमें कुछ भी लेंथ दे दी है, जैसे 5 into 40 सिगार का, तो हम अगर फॉर्मूले से हमने इसको मतलब डायमीटर निकाला हमने, तो हम जो जहाँ 50 लिखा है वहाँ पे 40 पुट करके निकालेंगे उसका डायमीटर। बस बस, हाँ बस बस, सिंपल कहानी है, रट्टा मार के जाओ, सिंपल कहानी, फॉर्मूला रट्टा मारो खत्म। लेकिन हाँ समझना भी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन मेरे टाइम पे भी आया था 2 मार्क्स का, मैंने 2 मार्क्स ले लिया, लेकिन आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि क्या था वो। तो बट लेकिन कहानी ये है जो फौजिया मोहम्मद और पल्लवी कुमारी ने हम लोगों को समझाया कि 64 से डिवाइड करके उसका एक डायमीटर, वो मैं भी भूल गया क्या कहा था। चलो ठीक है, जो भी है, ये रिकॉर्ड तो वैसे भी ये लेक्चर तो रिकॉर्डेड हो गया है, और ये सब चीजें आपको YouTube में मिल जाएगा, और नेचुरली देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड कल फिर इसके बारे में मिस पल्लवी मैम जो है हमारे, शी विल डू सम रिसर्च एंड विल टेक ए लुक एट दिस, ठीक है। तो चलो, तो ये एग्जाम में भी चांसेस है, तो इस जस्ट केयरफुल ऑन दिस। एंड देन सिगार के साइज ये 2 टाइप होता है, वन इज पैजेरो एंड फिगुराडो। अब जो आपको जानना है वो उसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। ये सिगार के इतने सारे साइज होता है और सबके नाम होता है, इट इज वेरी वेरी मतलब इंटरेस्टिंग ऑल्सो। टेटिट कोरोना, गोर्डितो, रोबास्टो कोरोना, ऑल आर दिस पैजेरो टाइप्स, और ये सारे फिगुराडो, यहाँ पे आपका टॉर्पेजो, बेलिकोसो, इस टाइप के। अब सवाल ये कि इसकी क्या जरूरत आ गई अचानक से, क्या एक सिगार लंबा ऐसा नहीं बन सकता था, अचानक इसकी क्या जरूरत आ गई? तो
क्या हुआ, ये वंस अगेन सिंपल थिंग, इंटरनेशनल मार्केट में सिगार मार्केट को मतलब प्रमोट करने के लिए ये सब चीजें किया जाता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हम रोमियो एंड जूलिएटा, दिस इज द सिगार ब्रांड फ्रॉम क्यूबा, इसका एग्जांपल ले, तो एक चीज देखिए, सिगार ब्रांड का सेवरल साइजेस है, ये रोमियो जूलिएटा का भी सेवरल साइज है। तो इनमें से इस साइज को, सिगार के साइज को स्पेनिश भाषा में कहा जाता है विटोला। पीपल रिमेंबर वंस अगेन, इसको याद रख लेना, भूलना मत एकदम, विटोला, कंट्रोल एस दबा के इसको सेव कर लीजिए, इट इज नोन एज अ विटोला, सिगार के साइज। हाँ, तो ये देखिए इतने सारे साइज होता है उसका। तो एक रोमियो जूलिएटा के बेलिकोसो है, बेलवेद्रे है, चर्चिल है। अब पिछले वाले साइड में जाते हैं अपन, देखिए तो बेलिकोसो का साइज क्या है, 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 52। इसका मतलब तो ये हो गया कि बेलिकोसो जो रोमियो जूलिएटा का जो साइज है, इसमें 5.5 इज द सिगार के लेंथ और 52 उसके रिंग गेज है। तो व्हाट इज रिंग गेज, जो भी आपके फॉर्मूला यूज करके आएगा वही होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये देखिए यहाँ पे बेलिकोसो का साइज आपको दिख रहा है, इट इज 5.5 बाई 50, 5.5 बाई 50। सो दिस इज द फैक्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये मैंने आपको अभी नोट्स में दिया होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिगार्स और उसके साइजेस, ये साइज आई एम सॉरी टू से बट उसको याद करना होगा, ठीक है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से कुछ फेमस नाम आप याद कर लीजिए, आई मीन लाइक ये जैसे समझ लीजिए आप, ये पेटिट कोरोना, चर्चिल, विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, उसके नाम से है ये, पैंचेला, टॉर्पेडो, बेलिकोसो, ये सारे फेमस जो नाम है, थोड़ा सा इसको थोड़ा याद रखना होगा। आई साइजेस बेसिकली, शायद मैथमेटिक्स आए या ना आए वो बात की बात है, लेकिन ये तो जरूर आएगा। सो जस्ट केयरफुल विद दिस फैक्ट, ठीक है। तो ये था आपके सिगार के साइज। हर कंपनी, चाहे वो पोर्टगस हो, चाहे वो मकांडू हो, या तो फिर चाहे वो रोमियो जूलिएटा हो, हर सिगार ब्रांड के डिफरेंट साइजेस है, और ये साइजेस को बनाया गया है टू सूट द इंटरनेशनल मार्केट। एक सिगार देखने में टॉर्पेडो के टाइप होगा, एक सिगार को देखने में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कुछ सिलिंड्रिकल शेप होगा, बूमेरांग जैसा शेप होगा, दैट गिव्स अ नाइस अट्रैक्शन द फैक्ट, ठीक है। तो अब हम ये यहाँ पे आपको सिगार का लेवल दिख रहा होगा, समझ लीजिए हम रोमियो जूलिएटा को देखते हैं, हम ये लेवल को पढ़ेंगे कैसे। द फर्स्ट वन इज रोमियो जूलिएटा व्हिच इज अ ब्रांड नेम ऑफ सिगार फ्रॉम द क्यूबा। इसके बाद हम और देखेंगे 1875 पे ये कंपनी पहली बार क्यूबा में एग्जिस्टेंस लिया था, तो इट्स फ्रॉम 1875। उसके बाद एस्टैब्लिशिंग ईयर है इसका, एंड देन we take a look, there is something called medalla de oro। medalla de oro मतलब ये है इसका गोल्ड मेडल। ये गोल्ड मेडल क्या मतलब, सिगार को गोल्ड मेडल मिला है? नहीं, इसके ऊपर जो रैपर है, ये रैपर आपको दिख रहा है, दिस इज मेड आउट ऑफ योर गोल्डन पेपर। जैसे कि समझ लो वो मिठाई के ऊपर आपने देखा होगा सिल्वर का फॉयल लगता है, जिसे को हम कहते हैं चांदनी का वर्क, या सिल्वर का वर्क, और वी कैन कॉल इट चांदनी का वर्क, समथिंग लाइक दिस, सोने का वर्क, बेसिकली वो पेपर लगता है। सेम वे दिस रैपर हैज बीन डन, ओके। वंस अगेन यू कैन, आप देख सकते हो अनदर फेमस ब्रांड, देखिए मकांडू हैंडमेड एंड इंपोर्टेड। इसका मतलब क्या है, हैंडमेड मतलब क्या, वो बोल रहा है कि नहीं हमारा सिगार मशीन से नहीं, हैंड रोल्ड है, इसलिए इतना एक्सपेंसिव है ये, एंड इंपोर्टेड मे बी शायद जब ये इंडिया में आया होगा ये ब्रांड किसी होटल में, तो वहां पे लिखा होगा इंपोर्टेड, बिकॉज ये बाहर से इंपोर्ट हुआ है, दैट्स द ओनली रीजन, ओके। सो लॉट्स ऑफ स्पेनिश लैंग्वेज स्किल यू नीड टू लर्न अबाउट सिगार, बिकॉज सिगार है क्यूबा से, और क्यूबा का नेशनल लैंग्वेज है स्पेनिश, ठीक है। तो चलो, बहुत मैथमेटिक्स हो गया, अब थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया होगा सबका, तो लेट्स वॉच अ वीडियो हाउ वी रोल अ सिगार, देखते हैं उसको अभी।